है। Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, give honor to those whom it is due, उन लोगों को आदर दो जो उसके योग्य है, when it is in the power of your hands to do so. जब तुम्हारे हाथों में ऐसे करने की सामर्थ्य है। Before I start my word, और इस मेरे वचन को शुरू करने से पहले there are a few people I want to thank and honor God for being a part of my life. कुछ लोग हैं जिनको मैं आदर देना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे जीवन का एक हिस्सा थे। I want to really thank God for my grandmother. मैं मेरे नानी का धन्यवाद देना चाहती I हूँ। had a praying grandmother. मेरे पास प्रार्थना करने वाली एक नानी थी And if she would have been here today, she would have been so proud. और अगर वो आज की सुबह यहाँ पर रहती तो वो बहुत खुश होती। Every blessing that I see in my life हर एक जो आशीष आज मैं जीवन में देखती हूँ is because of the prayers that she sowed in. वो इस वजह से है क्योंकि उसने प्रार्थना की थी। I want to thank Apostle Donald and Pastor Neeta. अपोस्टल डोनाल्ड और पास्टर नीता का धन्यवाद कहना चाहते हैं। It takes a heart of, a very secure leader. और एक स्थिर अगुवा जो होता है, It takes their heart. सिर्फ वही, Only their hearts can recognize the next generation. सिर्फ वो अगले पीढ़ी को समझ सकते हैं। I really want to thank both of them for their lives, for entrusting me with this. और उनको शुक्रिया कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें इस काबिल समझा। Just like when I think back about my life, जब मैं मेरे जीवन को देखती हूँ, where I was, जहाँ थी to where God has brought me, और जहाँ तक परमेश्वर मुझे लाया है, it's all the Lord's doing. वो सिर्फ परमेश्वर का कार्य है। Today, just before I was preparing in the morning, और आज की सुबह जैसे हम तैयार कर रहे थे परमेश्वर के वचन को, something that just touched my heart. और एक जो चीज मेरे हृदय को बिल्कुल छू गई, All of our life's accomplishments on one side. हमारे जीवन के सारे चीजें जो हमने किए हैं वो एक जगह, All that we achieve in our life, that's on one side. हमारे जीवन की हर एक सफलता एक जगह, But nothing compares to the privilege of serving the Lord Jesus. परंतु कोई भी बात परमेश्वर की सेवा करने के काबिल के समान नहीं होती। All my studies, all my degrees, my career, everything on one side. और मेरा जो कामकाज है, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, वो सारी एक जगह, But the privilege of being called a servant of the Most High God. परंतु ये सौभाग्य कि मैं परमेश्वर की दास बुलाई जाऊं, Oh, nothing compares to that joy. वो कोई भी चीज उसके करीब नहीं आती। Amen. Today I want to talk to you about Bethesda. आज की सुबह आपसे बेथेस्दा के बारे में बोलना चाहते All हैं। of us know Bethesda. हम सब बेथेस्दा को जानते हैं। John chapter 5. यूहन्ना 5वां अध्याय। We've heard the story of Bethesda so many times. हमने कई बार इस कहानी को सुना है। We've heard the miracle that Jesus performs at Bethesda so many times. हमने कई बार सुना है, पर वो चमत्कार को जो परमेश्वर बेथेस्दा में करता है। But when I was just preparing my word, God showed me something so different about the healing that took place at Bethesda. जब मैं वचन को तैयार कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अलग तरीके से दिखाया उस चंगाई को जो बेथेस्दा में हुई। This is John chapter 5 verse 1 to 3 from the Voice translation. और ये यूहन्ना 5:1-3 है वॉइस ट्रांसलेशन से। It says, when these events were completed, Jesus led his followers to Jerusalem, where they would celebrate a Jewish feast together. Now this is the commentary that is written there. It says, Jesus takes his disciples into one of the most miserable places they have ever seen. The suffering and impurity is frightening, but he comes to serve these precious people. In Jerusalem, they came upon a pool by the sheep gate, surrounded by 5 covered porches. In Hebrew, this place is called Bethesda. Crowds of people lined the area, lying around the porches. All of these people were disabled in some way. Some were blind, some were lame, some were paralyzed or plagued by diseases. जब ये घटनाएं पूरी हो गई, तो यीशु अपने अनुयायियों को यरूशलेम ले गया जहां वे एक साथ यहूदी दावत मनाते थे। यीशु अपने शिष्यों को उन सबसे दयनीय स्थानों में से एक में ले जाता है जो उन्होंने कभी देखा हो। पीड़ा और अशुद्धता वहां पर मौजूद थे, लेकिन वह इन अनमोल लोगों की सेवा करने के लिए आता है। यरूशलेम में एक भेड़ फाटक के पास एक तालाब पर पहुंचे जो 5 ढके हुए बरामदों से घिरा हुआ था।
हिब्रू में इस जगह को बेथेस्दा कहा जाता है। लोगों की भीड़ बरामदे के आसपास जमा हो गई। ये सभी लोग किसी न किसी तरह के अक्षम थे। कुछ अंधे, लंगड़े, लकवाग्रस्त या बीमारियों से पीड़ित थे। Now pay attention to this. इस बात को सुनिए। There is a festival that's going on in Jerusalem. यहाँ पर जो है एक सन मनाया जा रहा है। There is a Jewish festival that's going on. यहूदियों का एक सन मनाया जा रहा है Jesus enters Jerusalem, और परमेश्वर यीशु यरूशलेम चलते हैं, but he did not go into the festival. परंतु वो उस त्योहार में नहीं जाते, He goes to Bethesda. वो बेथेस्दा जाते हैं। You know, very often बहुत बार we have this idea of Jesus. हम परमेश्वर यीशु के बारे में इस प्रकार से विचार करते हैं And you know, if my life has a lot of problems, कि अगर मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, if my life has a lot of misery, मेरे जीवन में अगर बहुत दर्द है, the Lord is not going to come visit me. तो शायद परमेश्वर मुझे आकर नहीं मिलेंगे। You know, but one quality about Jesus. परंतु एक जो गुण परमेश्वर यीशु का है, Jesus walks into places परमेश्वर उन स्थानों में चलते हैं where no one wants to go. जहाँ कोई और चलना नहीं चाहता। So he left the festival aside वो त्योहार को छोड़कर गए and he goes to Bethesda. और वो बेथेस्दा See, जाता है। the Voice Translations commentary says that place was frightening. और वॉइस ट्रांसलेशन में जो कमेंट्री है वो इस प्रकार से बताती है कि वो जगह जो थी वो बहुत ही डरावनी थी It was the most miserable places his disciples had ever seen. और ऐसी जगह उसके चेलों ने कभी देखी नहीं थी, But yet he chose to go there. परंतु फिर भी उसने चुना कि वो वहां चले। You know, sometimes we have this mentality. और कई बार हमारे मन में ये विचार होता है Why would Jesus visit me? कि परमेश्वर मेरी भेंट क्यों लेंगे? You know, I am a person full of problems. मेरे जीवन में तो बहुत समस्या है, My life is full of filth. मेरे जीवन में बहुत गंदगी है, My house is too small. मेरा घर बहुत छोटा है, I don't earn as much as the others do. मैं उतना कमा भी नहीं पाता जितना दूसरे लोग कमाते हैं। Jesus walks into places where no one wants to enter. परंतु परमेश्वर उन जगहों में प्रवेश करता है जहाँ पे कोई और प्रवेश नहीं करना Your चाहता। situation doesn't matter to Jesus. और तुम्हारी परिस्थिति की कोई मूल्य नहीं है उसके Your सामने। disability doesn't matter to Jesus. तुम जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हो उसको वो कोई मूल्य नहीं है उसके He's going सामने। to leave every festival to come visit you. वो हर एक त्योहार को पीछे छोड़ देगा ताकि आके तुम्हारी भेंट ले सके। You know, as human tendencies, if I had to choose between a festival and some place which is so sad and depressed, I would obviously run to the festival. और मनुष्य होने के नाते अगर मुझे चुनना पड़ता कि या तो त्योहार में जाओ या तो ऐसे जगह पे जाओ, तो मैं हमेशा त्योहार को चुनती। But Jesus didn't do that. परंतु यीशु ने नहीं किया। He left the festival. उसने त्योहार को छोड़ He दिया। didn't just go to Bethesda alone. वो अकेले नहीं गया, He took his disciples with him. परंतु चेलों को भी लेके गया। You know, are you suffering from something today? आज की सुबह क्या तुम किसी चीज से गुजर रहे You हो? know, is there a condition in your life that you feel is not going to heal, it's not going to become good at all? क्या तुम्हारे जीवन में ऐसे कोई परेशानी या कोई कठिनाई है जो तुम्हें लगती है कभी ठीक नहीं होगी, कभी चंगी नहीं होगी? Is there something in your mind you feel you cannot even share with the people in church? क्या तुम्हारे मन में ऐसी कोई भावना है जो तुम कलीसिया के लोगों को तक बता नहीं सकते? You know, I want to tell you this morning. आपसे इस बात को आज की सुबह बोलना चाहते हैं, He's going to come visit. परमेश्वर तुम्हारी भेंट It लेगा। doesn't matter. We don't need to come there. तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं He है, is going to visit you. परमेश्वर तुम्हारी भेंट लेगा। However small your problem, कितनी भी छोटी परेशानी क्यों ना however हो, big your problem, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, however small your house, तुम्हारा घर चाहे कितना छोटा क्यों ना हो however big your house, या कितना बड़ा क्यों नहीं हो, you know, your stature in society, और समाज में तुम जो हो, whether small or big, चाहे छोटे या बड़े, the Lord is going to walk into your situations this morning. परमेश्वर तुम्हारी परिस्थिति में चलेंगे। The first point that I wanted to talk about, आज की सुबह पहली बात इस प्रकार से बोलना चाहते हैं, Jesus left the place of the festival, परमेश्वर ने त्योहार को छोड़ा to the place no one wanted to visit. उस स्थान पर जाने जहाँ पे कोई और नहीं जाना Is चाहता there था। some part of your life, a hidden part of your life, क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भाग है जो छुपा हुआ है? you can't even share about the hurt to anybody, उस दर्द को तुम किसी और से बोल भी नहीं सकते, you can't even share it at home, ना घर पे बोल सकते हो, you can't share it with anybody in church, ना कलीसिया में किसी को बोल you can't सकते share हो, it with your friends. ना तुम्हारे मित्रों को बोल सकते You हो, have so many questions और तुम्हारे मन में ऐसे बहुत सवाल उठते and you हैं are sitting there in despair.
और तुम दर्द में बैठे रहते हो And the Lord is saying, और परमेश्वर आपसे कह रहे I'm हैं going to visit you this morning. मैं तुम्हारी भेंट लूंगा Are आज की you सुबह। ready for Jesus to क्या तुम visit you? तैयार हो परमेश्वर आके तुम्हारी भेंट लेने के लिए? Moving on the next slide. No, Bethesda was the place where all the sick people lay. बेथेस्दा ऐसी जगह थी जहां पे हर एक बीमार व्यक्ति वहां पर पड़ा रहता था। You know, in the book of John chapter 5 verse 4 it says, यूहन्ना 5:4 इस प्रकार से कहता है, For an angel went down at a certain season into the pool, and he stirred the water. Whoever then first entered after the stirring of the water was made whole of whatever disease he had. क्योंकि एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड में उतरा और पानी को हिलाया। फिर जो कोई पानी के फटने के बाद पहले उतरा, उसकी जो भी बीमारी थी वो चंगा हो गया। No, the people lying there had to wait for an angel of God. जो लोग वहां पे पड़े थे उन्हें इंतजार करना पड़ा परमेश्वर के स्वर्गदूत का, Because they said that an angel went down at a certain season. क्योंकि इस प्रकार से लिखा गया है कि एक निश्चित समय पर एक स्वर्गदूत वहां पर जाता Once the angel went there, और एक बार जब स्वर्गदूत वहां पे जाता था the angel had to stir up the water. वो उस पानी को हिला देता था Only when he stirred the water and someone jumped in, और पानी को हिलाने के बाद जब कोई पानी में जाता था only then they were made whole. सिर्फ और सिर्फ तभी उन्हें चंगाई प्राप्त But होती in थी। John chapter 5 something else happened. परंतु यूहन्ना 5 में एक नई बात होती It है was not the season for the angel to come down. और स्वर्गदूत आने का समय नहीं It था। was the season for the God who created the angels to walk into वो the ये समय था कि जो स्वर्गदूत को बनाने वाला परमेश्वर है उसके आने का समय हो गया You था। see, the creator of angels walked into that place that morning. स्वर्गदूतों का निर्माण करता वहां उस जगह पर पहुंच गया The था, one who holds time and season in his hands, he walked into that place that morning. जिसके हाथों में समय है और जिसके हाथों में पूरी पृथ्वी है, वो उस जगह पर पहुंच गया था। Now nobody had to jump into the water. अब किसी को पानी में कूदने की All जरूरत they नहीं थी, needed, सिर्फ एक चीज करनी थी, one encounter with Jesus. परमेश्वर से एक भेंट। Now Jesus meets a man over there. और परमेश्वर यीशु वहां पर एक आदमी को मिलता है। Now that man has been lying there for 38 years. 38 सालों से वो आदमी वहां पर पड़ा है Imagine, he is paralyzed for 38 years. और 38 सालों से वो पैरालाइज्ड है। Jesus meets him. परमेश्वर उसे मिलते हैं It was very surprising. Why 38 years? और ये सोच में पड़ गए कि 48 साल क्यों। Deuteronomy 2 verse 14 says, ड्यूटरोनॉमी 2:14 वचन में इस प्रकार से कहा गया And है it took the Israelites 38 years to complete the journey of the wilderness. कि 48 साल लगे इजरायलियों को उस रेगिस्तान के सफर को पूरा करने के लिए। 38 साल। The person who's at the pool, और जो आदमी वहां पर लेटा था he was in the wilderness for 38 years. वो उसके रेगिस्तान में 38 साल से था। He didn't know what was going to happen to him. उसे पता नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। You know, the next scripture is Jesus' interaction with him. और अगली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु उससे क्या बात करते हैं। Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" परमेश्वर यीशु पूछते हैं, मैं क्या करूं तेरे लिए? And the sick man answered and said, और बीमार व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है, says, "Sir, I have no man to put me in the pool when the water is stirred up. But while I am coming, another steps down before me." हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है जो पानी बढ़ने पर मुझे कुंड में उतार सके, परंतु जब मैं आता हूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। Now pay attention. मेरी बात को गौर से सुनिए। 38 years he's been paralyzed. 38 साल से उसे पैरालिसिस हुआ है। When Jesus asked him, जब परमेश्वर उसे पूछता है he says, "I don't have anyone to push me into the pool." तो वो ये कहता है, मेरे पास कोई नहीं है ताकि वो मुझे धक्का दे सके। But he didn't know one thing. परंतु उस आदमी को एक बात नहीं पता See, थी। he did not get tired of his situation. वो उसके परिस्थिति से थका नहीं था, He still stayed there. वो वहीं पे रुका था He said, "If not this season, next season." कि अगर इस समय पर नहीं हुआ तो अगले समय पर हो He जाएगा, said, "If not the next season, the season after that." अगले समय पर नहीं हुआ तो उसके बाद हो जाएगा। He said, "If not after this season, the next one for sure." तो अगर आज नहीं हुआ तो कल तो होना ही है। He was persistent. वो थका नहीं, He did not leave the side of the pool. वो उस कुंड के से हिला नहीं था। You know what happens with you and me?
क्या आपको पता है आप और हमारे साथ क्या होता है? we make peace with our disabilities. और हमारे बीमारी से हम समझौता कर लेते हैं। We make peace with our situations. हम हमारे परेशानियों से समझौता कर लेते We हैं say, okay, probably this is the will of God. और हम सोचते हैं कि हाँ शायद परमेश्वर की इच्छा यही है, You know, this is what probably God wanted for और me. शायद हम सोचते हैं कि हाँ यही बात परमेश्वर चाहता है But the मेरे man लिए। at the Bethesda pool, he didn't move. परंतु बेथेस्दा कुंड के वहां पर जो वो आदमी था वो हिला नहीं। He said, if not today, tomorrow for sure. तो उसने कहा आज नहीं तो कल सही। He decided, he said, whatever happens, I'm not going to leave this place. उसने कहा चाहे जो कुछ हो जाए मैं इस स्थान को छोड़ूंगा 38 नहीं। years being a paralytic, he said, oh, 38 years, I'm used to the paralysis. Chalega, I'll sit outside the gate and ask for alms. और उसने कहा कि ठीक है 38 साल तो हो गए, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं पे रह के भीख मांग लूंगा। He did not do that. परंतु उसने वो नहीं कहा। He stayed where he was. वो जहाँ रुका वो वहीं पे रुका रहा। His condition made him uncomfortable. और उसकी जो उसकी परिस्थिति थी उसने उसको नाखुश कर दिया। Today I want to speak to all और of you. आज की सुबह तुमसे बोलना चाहेंगे, Don't make peace with your situations. अपने परेशानियों से समझौता मत Your कीजिए। disability should make you uncomfortable. तुम्हारी जो परेशानी है उसमें उससे तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए। Don't assume that is the will of God for और you. ये मत सोचिए कि वो परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए। What happens? We think और आपको पता है हम सोचते हैं my mom had diabetes, कि मेरे माता को डायबिटीज था, my grandmother had मेरे diabetes. दादी को डायबिटीज था, मेरे को भी होगा. तो शायद मुझे भी हो जाएगा। We think oh BP issue runs in the family. हम कई बार बोलते हैं नहीं हमारे परिवार में ब्लड प्रेशर की तकलीफ होती है। We make peace with our situation. हम हमारे परेशानियों से Your समझौता कर लेते disability हैं। should make you uncomfortable. तुम्हारी जो आपकी विकलांगता से आपको आपके साथ उसके साथ आपको समझौता नहीं करना है। You know, when in 2021, 2021 में you know, four of us, all of us as a family, we suffered with COVID. और हम चारों जन को एक साथ कोविड हो गया था And I was affected the most. और सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे पहुंची, Not physically, mentally. और शारीरिक रूप में नहीं परंतु मानसिक रूप I से। had lost my taste and smell. और मैं सूंघने की क्षमता और चखने की क्षमता चली गई थी। You know, for a month and a half, I did not get it back. और 1.5 महीने तक मुझे ये मिला नहीं I did not make peace with my situation. और मैंने उससे समझौता नहीं कर लिया I tried every trick in the world to get my smell and taste back. और हर एक चीज मैंने की ताकि मुझे श्वास और सुगंध वापस मिल सके। I think my nose was half burned with the amount of inhalations I was taking. और जितना इनहेलेशन लेते थे शायद मेरा नाक जल चुका था, But I did not let COVID rule over me. परंतु कोविड को अपने ऊपर राज करने नहीं दिया। I was so uncomfortable. I said, God, this is not your will for my life. और मैंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर ये तेरी इच्छा नहीं है मेरे जीवन के My लिए। situation made me uncomfortable. मेरी जो परिस्थिति है वो मुझे सता भले सके। Your situation today should make you uncomfortable. Don't make peace with your diseases. तुम्हारे बीमारी के साथ आज की सुबह समझौता मत कीजिए। You know, doctor said, oh, you're old, your knees are going to pain. तो शायद डॉक्टर ने कहा है तुम बूढ़े हो, तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा, Oh, but Ezekiel says that the dry bones live. परंतु एजिकियल का वचन कहता है जो सूखे हुए हड्डी है वो फिर से जिएंगे। You that person who needs healing in their bones. क्या तुम वो व्यक्ति हो जिसको अपने हड्डियों में चंगाई की जरूरत है? Speak the life of Jesus into those dry bones. आज की सुबह परमेश्वर के जीवन को उस सूखे हुए हड्डियों में घोषणा करते हैं। Don't make peace with your situation. अपने परिस्थितियों से समझौता मत कीजिए। ठीक है, it's a small pain. हाँ ठीक है, छोटा सा दर्द है, चला जाएगा. ये चला जाता है, It's not going to go. परंतु वो जाता नहीं It है। should make you uncomfortable. वो तुम्हें उसके साथ समझौता नहीं करना The है। man at the Bethesda pool did not move till his chance did not come. बेथेस्दा कुंड के बाहर जो आदमी था वो हिला नहीं जब तक उसका समय नहीं आया, Because he waited there. क्योंकि वो रुका रहा। Oh, Isaiah 40 came true in his life. यशायाह 40 उसके जीवन में पूरा Because हुआ, he waited at the pool. क्योंकि वो वहां पर रुका रहा। The Bible says those who wait on the Lord shall renew their strength. परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर पे रुकते हैं वो उनके ताकत को पूर्ण करेंगे। They shall run and not faint. वो दौड़ेंगे और वो थकेंगे They नहीं, shall walk and not be weary. वो चलेंगे और वो गिरेंगे नहीं। He was paralyzed.
उसे पैरालिसिस की बीमारी थी, He waited, वो रुका रहा, but he renewed his strength the moment he waited. परंतु on Jesus. उसकी जो ताकत है वो लौट आई जब परमेश्वर यीशु को मिला, Because he waited at the pool, क्योंकि वो रुका उस कुंड के वहां पर, he had a meeting face to face with Jesus. वो परमेश्वर यीशु को मिल सका। If he had left, अगर वो चला जाता था someone else would have been healed. तो शायद किसी और को चंगाई मिलती। He took his portion before he left. उसने उसके भाग को लेकर वहां से गया। Today morning I want to challenge each आज of की you. सुबह तुम्हें बोलना चाहेंगे, Whatever pain, जो कोई दर्द तुम्हारे जीवन में whatever है, disease, जो कुछ तकलीफ या बीमारी तुम्हारे जीवन में in है, the name of Jesus, परमेश्वर यीशु के नाम से I declare you healed. मैं तुम्हें चंगा I घोषित करती हूँ। prophesy over each one of you तुम्हारे present ऊपर here. आज की सुबह भविष्यवाणी Oh, in करते the हैं name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में। every disease, हर एक बीमारी, every power of darkness, हर एक शैतानी ताकत, every spirit of infirmity हर एक बीमारी की आत्मा has to leave. उसे निकलना है। Oh, church, are you excited? परमेश्वर के लोगों, क्या तुम उत्साहित हो आज की You want to सुबह? be healed this morning. आज की सुबह तुम चंगे होगे। Do not make peace with your situation. अपने परिस्थिति से समझौता मत कीजिए। If you feel, you know that, oh, this situation has come in my life, I have to live with it. अगर तुम सोच रहे हो कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में आई है, मुझे इसके साथ जीना है, That's wrong. तो वो गलत है। If you wait on the Lord, अगर तुम परमेश्वर के लिए रुकोगे your strength will be renewed this morning. तो तुम्हारी ताकत जो है वो दुगनी हो जाएगी। Hallelujah. We'll read verse 5 and 7 again. और पांचवा वचन, इस पांचवें अध्याय के 7वें वचन को दोबारा पढ़ेंगे। The man says, आदमी कहता है, Sir, I have no man to put me in that pool. प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पानी बढ़ने पर मुझे कुंड में उतार सके। The last part says, while I am coming, और आखिरी वचन इस प्रकार से कहते हैं, परंतु जब मैं आता हूँ another steps down before me. तो दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। Imagine this scene at the pool. और इस बात को सोचिए, उस कुंड के आजू बाजू Every time he comes near, जब भी वो नजदीक आता है, someone else jumps in. कोई और पानी में कूद पड़ता है। Every time he's closer, हर एक बार जब वो नजदीक आता है, someone else jumps in. कोई और कूद पड़ता है। When I was waiting on the Lord for this word, जब परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना कर रहे थे इस वचन के लिए, the Lord told me, परमेश्वर ने कहा, there are many of you who are present here this morning. आज की सुबह बहुत जन यहाँ पर मौजूद है And every time you are about to reach your breakthrough, कि हर एक बार जब तुम तुम्हारे उद्धार तुम्हारे आशीष के बिल्कुल करीब आ जाते हो, someone else has got it already. तो किसी और को वो मिल जाती है। The Lord is saying He's visiting you. परंतु आज परमेश्वर कह रहा है, वो तुम्हारी भेंट ले रहा Your है। breakthrough is yours. तुम्हारी जो आशीष है वो सिर्फ तुम्हारी है। No, don't get comfortable. खुश मत होइए आपके No, उस परिस्थिति there में। was this cycle that was happening with this man. और इस आदमी के साथ ये हर बात हो, ये बात हमेशा होते रहती थी। Every time he's making a move, हर एक बार जब वो एक कदम उठाता था, someone else is going in. कोई और पानी में जाता था। Every time you're applying for a promotion, आप में से कुछ जन हर एक बार जब आप प्रमोशन के लिए जाते हो, someone else is getting it. किसी और को मिल रहा है। You're applying for a job, तुम नौकरी के लिए अप्लाई करते हो, someone else is getting किसी it. और को मिल रहा है। You want to do something with your life, तुम अपने जीवन के साथ कुछ नई चीज को करना चाहते हो, someone else is getting the honor. किसी और को मिल रहा है। The Lord told me very specifically. परमेश्वर ने मुझसे इस सीधे रीति से इस बात को बोला, The Lord is going to break that cycle this morning. परमेश्वर उन चीजों को आज की सुबह तोड़ने वाला है। Honor snatching demons, और जो तुम्हारे आदर को छीनने वाले दुष्ट आत्मा होते हैं, opportunity snatching demons, मौका चुराने वाले दुष्ट आत्मा जो होते they're हैं, going to flee from this place. वो इस स्थान से भागने वाले हैं। Today that cycle is going to आज की सुबह वो चीज टूटने वाली है। Today that cycle is going to end. आज की सुबह वो चीज टूटने वाली है। Now look at this man. Every time he comes close, आज की सुबह देखिए, इस आदमी को हर एक बार जब वो नजदीक आता है, someone else jumps in. कोई और कूद पड़ता है, But he did not move from there. परंतु वो हिलता नहीं है वहां से, He stays there. वो वहीं पर रुका रहता है। So the meaning of Bethesda means flowing water. बेथेस्दा का अर्थ बहता हुआ पानी है। In the Aramaic translation, Bethesda means flowing water. अरामिक ट्रांसलेशन में बेथेस्दा का मतलब बहता हुआ पानी। Flowing water was restricted in a pool.
बहता हुआ पानी एक कुंड में उसे दबाए रखा था। The water that was supposed to flow was limited inside a pool. जिस पानी को बहना था उसे एक कुंड में सीमित कर दिया था। John 7:38 says, यूहन्ना 7:38 इस प्रकार से कहता है, He who believes in me, मेरे में जो विश्वास करता from है his innermost being, उसके अंदरूनी भागों से will flow rivers of living water. जीवित जल की नदियां बहेगी। Today, every limitation of that flowing water, आज की सुबह जो कोई चीज ने तुम्हारे जीवन के जल को सीमित किया है, every limitation over you, हर एक सीमा जो तुम्हारे ऊपर बनी है, the flowing water of the Holy Spirit is going to take it off right now. परमेश्वर की जो बहती हुई नदी है वो उस बात को निकाल देगी। Come on, church. The Spirit of God is here. कलीसिया, परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर The है, Spirit of God is here. परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर है, And I know He's going to break those और cycles. मैं जानती हूँ कि वो उन सारी बातों को तोड़ने वाला है। Many of you who are here who have been overlooked. और आप में से कई लोगों को अनदेखा कर दिया है। There are many of you over here who have been overlooked. यहाँ पर बहुत लोग हैं जिन्हें अनदेखा कर दिया था, But one thing I want to tell you, परंतु एक बात को बोलना चाहते that हैं, cycle breaks today. वो साइकिल आज टूट रहा है। No more are you going to be overlooked. आज से तुम अनदेखे नहीं होंगे, We are going to break those cycles off from your हम life. उन्हें तोड़ने वाले हैं आज की सुबह। Your honor that is due unto you. जो आदर तुम्हें मिलना है, Oh, the Spirit of God is saying you're going to receive it this morning. परमेश्वर की आत्मा कह रही है आज की सुबह तुम उसे स्वीकारोगे। As you enter into the 7th month of this year, जैसे तुम 7वें महीने में प्रवेश करते हो, the month of the seventh number, और जो 7 ये अंक जो है it denotes perfection. वो सिद्धता को बोलता है। Even as you enter the 7th, जैसे तुम 7वें महीने में प्रवेश करते हो, every work of your life, तुम्हारे जीवन में जो हर एक काम है, तुम्हारे हाथों का हर एक काम, every work of your hand, तुम्हारे हाथों का हर एक काम, oh, it's going to get perfected. वो आज सिद्ध होने वाला है। Every work of your hand, तुम्हारे जीवन का हर एक काम it's going to get perfected. वो सिद्ध होने वाला I है। prophesy over each one of you आज की this सुबह morning तुम पे भविष्यवाणी करते हैं, that your work is going to get perfected in this month. तुम्हारे हाथों के काम इस जगह पर सिद्ध होने वाले हैं As यीशु you मसीह के enter नाम the में। month of July, जैसे तुम जुलाई के महीने में प्रवेश करते I हो, declare perfection into your life. आपके जीवन के ऊपर सिद्धता की घोषणा करते I हैं, declare perfect health. तुम्हारे जीवन में सिद्ध श्वास को घोषित करते हैं, I declare perfect opportunities. और सिद्ध मौकों को घोषित करते I हैं। declare that honor that is due unto you will be received. जो आदर तुम्हें मिलना है हम घोषित करते हैं कि तुम उसे पाओगे। Oh, the river of God is here. परमेश्वर की नदी यहाँ पर है, The Holy Spirit is पवित्र here. आत्मा यहाँ पर है, I can feel His presence. मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। आज की सुबह परमेश्वर के लोगों अपने आवाज को उठाइए और अन्य भाषा में आज की सुबह बात करने Every लगिए। every cycle, आज की सुबह हर एक वो जो साइकिल है, every cycle of being overlooked, हर एक बात जब तुम्हें अनदेखा कर दिया गया है, every cycle of disappointment, और जब तुम निराश होते हो, every cycle when it was your chance but someone else snatched it. वो हर एक बार जब तुम्हारा मौका था परंतु किसी और ने छीन लिया। The Lord is saying that cycle breaks today. परमेश्वर कह रहा है कि आज के दिन वो टूटेगा। You know, when I was meditating on this, जब इस वचन पर हम मनन कर रहे थे, if you look at what was happening with that man, अगर आप देखो उस मनुष्य के साथ क्या हो रहा था, you know, as he was getting near, जैसे वो नजदीक पहुंचता था his healing was getting rejected. तो उसकी जो चंगाई है वो उसे मिल नहीं रही थी। Very often, बहुत बार we deal with the spirit of rejection. हम रिजेक्शन के आत्मा के खिलाफ लड़ते हैं, ठुकराए जाने के आत्मा के खिलाफ लड़ते हैं। You know, we don't even know why we are being rejected. हमें पता भी नहीं है कि लोग हमें क्यों ठुकराते We हैं। don't even understand what problem someone has with us. हम इस बात को भी नहीं जानते कि वो क्या चाहता है हमसे। Today we are going to break that spirit. आज हम उसे तोड़ने वाले We are हैं। not going to just break that branch off. हम बस उसे तोड़ने नहीं वाले हैं, We are not just going to break the branch off. हम उस डाली को ही सिर्फ नहीं तोड़ेंगे, We are going to cut it off from its root. परंतु हम आज उसकी नींव को भी तोड़ You देंगे। know why we are going to do
that? क्या आपको पता है हम क्यों कर रहे Because we हैं? were not made for a spirit of rejection. क्योंकि हम ठुकराए जाने के लिए नहीं बने थे, We were made for a spirit of adoption. परंतु हम गोद लिए जाने के लिए बने We हैं। have been adopted into God's family. परमेश्वर के परिवार में हम गोद लिए गए लोग हैं। So if I am adopted into the family of और God, इसलिए अगर मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन चुका हूँ, how can I be rejected by तो the world? कैसे कोई मुझे ठुकरा सकता है? Come on, church. Oh, the presence of the Holy Spirit is here. परमेश्वर की आत्मा आज यहाँ पर है। I don't know if you can feel it, but I can feel it. ये नहीं जानते कि अगर आप उसे महसूस कर रहे हो कि नहीं, पर हम तो जरूर कर रहे हैं। While I was praying, और जैसे हम प्रार्थना कर रहे I थे, was remembering each one of you, हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे थे। where you all are seated. आज जहाँ पर आप बैठे हो, Because we stand on stage, I can picture where you all are seated even when I'm praying for you. क्योंकि जब हम आगे खड़े रहते हैं तो हमें पता है सब कहाँ पर बैठते हैं, इसलिए जब प्रार्थना कर रहे थे तो हमें पता था कि आप कहाँ बैठते हो रविवार के दिन। You know, the Lord has given me a word for you all. परमेश्वर ने एक वचन दिया है तुम्हारे लिए। Auntie Kikula, He is healing you. बहन किकुला, वो आपको चंगा कर रहा Don't है। make peace with your situation. तुम्हारे परिस्थिति से समझौता मत कीजिए। Every ill effect of COVID, कोविड का जो कोविड की जो हर एक तकलीफ थी, every ill effect of COVID, कोविड का जो परिणाम था, He's removing it from वो your life. तुम्हारे अंदर से उसे निकाल रहा Oh, है। the breath of God is in your lungs. परमेश्वर की श्वास He's जो है breathing, तुम्हारे He's breathing फेफड़ों into में your है, lungs this morning. वो तुम्हारे फेफड़ों में अपनी श्वास को दे रहा You're not है। going to face breathing issues anymore. तुम्हें कोई भी तकलीफ से नहीं गुजरना होगा श्वास लेते हुए। परमेश्वर आपको आशीष देगा।